Today we are going to discussing the chapter number 2 polynomial for class 11. Hello friends, today we are going to discussing the chapter number 2 for class 9 polynomial. Polynomials. What is the meaning of polynomials? Poly means many. Poly means many. A nomial means terms. So many terms is considered as a polynomials. Again, poly means what is the meaning of poly? Poly means many. Nomials means terms. So we will discuss about polynomial many terms containing is known as polynomials. So we will discuss about the terms. So you already discussed in the first lecture, just like that's you must be know very well. So root x can be written as x की power half and root x की power यहाँ पे cube है तो this can be written as x की power 1/3. You must learn this lecture. In the first lecture, you also learn about जैसे 1/x can be written at x की power -1. That is very important to learn. In this polynomial, we will discuss them one by one. This is x की power 1/3. That is very important because these terms are not considered as a polynomial. We will learn in these chapters. We did not watch the first lecture, so you must watch the first lecture then come to the second. And you know what did you read in about the 8th class? You read about the terms means they are connected with plus minus sign. We will discuss. Let's start the chapter. Before going to the topic, you must be understand the two terms. First one is the constant. What are the constant? All real numbers. Constant means all real number. Constant क्या होते हैं? All real numbers. All real numbers. That was the topic first. You have read. And all real number that may be -1/2, 3, 4.5, √2. All real numbers are known as constant. क्या known as constant? Why they are called constant? Constant means fixed value. Fixed value. Their value is fixed value. Value is fixed. That's why they are known as constant. Constant means fixed value. इनकी value fixed है. -1/2 fix हो गया. Just like, and what is the meaning of variable? Variable means vary. Variables means जो vary करता है. Something that is variable, which is not fixed. Variable means not fixed. Not fixed, and you know very well that the variables are represented using the small letters. You small letters से represent करते small letter A, B, C, D से लेके आप Z तक कोई भी small letters आप यूज कर सकते हैं. Small letters, ठीक है. Their value is not fixed. Not fixed value. Not fixed value. उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ठीक है. Not fixed value. Not fixed value are variables. That may be considered variable. You can say, you also say that just like any variables that can be written at x square is variable. In this terms is variables with degree is 1. Degree highest power of each variable a to z is 1. Highest power is 1 here. Each variable है highest power कितना होता है 1. ये आपको ध्यान रखना. This is constant. अब we come next to the point. What is the term? If you know both things, the term is generally what is the multiplication of constant and variable is known as term. What is the term? Term is the multiplication of constant into variables. For examples, if you multiply any numbers and any variable, for example, you multiply 2 into x, that this is the constant, this is the variable. When you multiply this one 2x, this is also a term. Understand? For example, -1/3, you multiply this with y. So this is also -1/3 is also a terms. This is also a terms. Sometimes you must understand this very concept here. If you multiply any number, that's for example -1 into t, that is equals to -t. It means you must know there is -1. T is multiplied by -1 here. You must be remember this one. This is very important. ठीक है. -1 into multiply तो that is -t. Sometimes do you know 3 is also a variable. 3 is also, you can write 3 into x की power 0, that is equals to 3. Any constant is also a term.
दिस इज आल्सो ए टर्म, अंडरस्टैंड, क्योंकि x की पावर 0, व्हाट इज द x की पावर 0, दैट इज इक्वल्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 0, सिंस यू नो x की पावर 0 इक्वल्स टू 1, दैट 3 into 1 इक्वल्स टू 3, तो दिस इज आल्सो ए टर्म, ऑल आर द टर्म्स, ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड द ट्रम्स क्या है, सिंपली आपको ट्रम्स के बारे में जानना है। तो ट्रम्स क्या होता है, कांस्टेंट को आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल से। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2, मल्टीप्लाई किससे किया, वेरिएबल x से, तो क्या बन जाएगा 2x, तो 2x एक टर्म है, सिंगल टर्म। आपने -1/3 को मल्टीप्लाई किससे किया है, मल्टीप्लाई बाय y वेरिएबल, तो यू गेट -1/3, दिस इज आल्सो अ टर्म। -1 मल्टीप्लाइड बाय t, तो व्हाट यू गेट -3, दिस इज आल्सो ए वेरिएबल, ठीक है। तो 3 इज आल्सो ए वेरिएबल, क्योंकि 3 कैन बी रिटन एट 3 into x की पावर 0, दिस इज आल्सो टर्म्स, ऑल आर द टर्म्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाता है, टर्म्स यू मस्ट बी नोट डाउन वेरी वेल, नोट करना चाहिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय, किससे सेपरेटेड की जाती है टर्म्स को, प्लस माइनस साइन, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें प्लस एंड माइनस साइन से आप टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं, इससे अब डिटेल में आप पढ़ेंगे, ठीक है, किससे सेपरेट होता है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू मस्ट नोट डाउन, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन, विच साइन, प्लस एंड माइनस साइन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पावर, व्हाट इज द पावर, पावर इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in the expression is known as power or degree, highest power, this is the degree, sorry, this one is degree. What is the degree, degree is the highest power of variable, this one is degree. What is the degree, definition of degree, degree is the highest power of variable in the expression known as degree, क्या कहते हैं degree. For examples, here in this expression variable is x, ये वेरिएबल इज एक्स, एक्स की पावर व्हाट इज देयर 2, यहाँ एक्स की पावर क्या है 1, 1 इज हियर, एक्स की पावर 1, तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 2, डिग्री क्या हो जाएगी 2, अंडरस्टैंड। इन दिस एक्सप्रेशन यू आर सीइंग व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हियर यू आर सीइंग एक्स की पावर हाउ मेनी 2, एक्स की पावर कितनी है 1 1 1, कितनी हो जाएगी 1 + 1 + 1, पावर्स आर एडेड, वेरिएबल मल्टीप्लाइड देन पावर्स आर एडेड, 1 + 1 2 + 1 3, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल, दिस 1 + 1 + 1 3, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल, डिग्री इज 3, डिग्री इक्वल्स टू 3, दिस इज कॉन्सेप्ट हियर, यू मस्ट बी नोट डाउन व्हाट इज द डिग्री ऑफ, नाउ वी आर गोइंग टू आफ्टर डिग्री we are going to learn a very very important concept here. This is given the algebraic expressions. What is the algebraic expression, they are connected with many terms, this is the algebraic expression in which we are using constant, this is variables as well as plus minus sign, ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल, अभी सबसे पहले बताया था आपको कि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन, तो दिस वन इज आल्सो सिंगल टर्म्स, दिस इज आल्सो टर्म, दिस वन इज आल्सो टर्म्स एंड दिस वन इज आल्सो टर्म। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यहाँ पे 4 टर्म्स है, कौन कौन सी टर्म है, 5xy², यहाँ -3x सेकेंड टर्म, -5y³ थर्ड टर्म, -3 फोर्थ टर्म, ठीक है। दीजिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और उसके प्लस माइनस साइन भी होते हैं, तो उसे बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब आपसे पूछते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ताकि आप टर्म्स को पहचानना सीख जाए। तो सबसे पहले आप देखिए इस वाले एग्जांपल में देखते हैं आप x² y + 3, तो यहाँ पे साइन प्लस का दिख रहा होगा आपको, प्लस साइन दिख रहा है आपको, प्लस साइन दिस, तो ये सेपरेट कर लेगा, यहाँ पे कितनी टर्म्स हो जाएगी, ये वाली टर्म्स अलग हो जाएगी, ये टर्म्स अलग हो जाएगी, तो कितनी टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 2, दिस वन और दिस वन, कौन कौन सी ये टर्म्स वो बतानी है, तो एक तो हो जाएगा x² y, दिस वन x² y, साइन के साथ बताना है x² y, और सेकंड टर्म्स कौन सी है 3 नहीं है, +3 आप लिख सकते हो या फिर 3 भी लिख सकते हो, अंडरस्टैंड, 3 को +3 लिख सकते हो, तो 2 टर्म्स है। और पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे क्या है, देखो पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा पावर 3, तो यहाँ पे लिख लिया पावर 3 ऐड हो जाएगी पावर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, प्लस माइनस से सेपरेट होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये माइनस आ गया तो टर्म सेपरेट हो जाएगी, ये प्लस है तो टर्म सेपरेट हो जाएगी, कितनी टर्म्स है आप देखते हैं, ठीक है। इस टर्म्स में कितनी टर्म्स है, एक x
-y और थर्ड टर्म है z। तो कितनी टर्म्स होगी टोटल काउंट की आपने, तो कितनी होगी 1 2 3। कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 3। कौन कौन सी टर्म्स है, एक तो है आपका x कॉमा, सेकेंड टर्म कौन सी है साइन, y नहीं है, y के साथ विद साइन लेना है आपको। y के साथ साइन कौन सा होगा, इससे जस्ट पहले -y एक टर्म है -y। और इसमें टर्म्स कौन सी होगी, +z लिखो या फिर z लिख दो, ठीक है। नेगेटिव साइन कंसीडर किया जाए, पॉजिटिव लिखने। तो पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, इधर भी 1 है, हाईएस्ट पावर इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। यहाँ प्लस बीच में तो इसको ऐड मल्टीप्लाई ऐड नहीं कर सकते, सिंपली पावर क्या आ जाएगी 1, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में और देखते हैं कितनी टर्म्स आपको पहचान आना चाहिए कि एक्सप्रेशन में टर्म्स कितनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे साइन प्लस माइनस का साइन है, तो ये टर्म सेपरेट हो जाएगी, ये टर्म सेपरेट हो जाएगी। तो कितनी टर्म्स हो गई 2। कितनी टर्म्स है इसमें 2, कौन कौन सी है, एक तो है 2/x और एक है माइनस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म -y²। कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स। कौन कौन सी है 2/x और कॉमा, सेकंड टर्म्स कौन सी है -y²। साइन के साथ आप लेंगे इस टर्म्स को -y²। हाईएस्ट पावर कितनी है, ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। पॉलिनोमियल होगा तभी आप डिग्री निकाल सकती है, पॉलिनोमियल है नहीं तो डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। अभी बताएंगे क्यों नहीं। -7 कांस्टेंट है, तो इसका टर्म्स कितना है, टर्म्स ये सिंगल एक ही टर्म्स कंसीडर होगा, कितना 1। -7 एक टर्म्स कंसीडर होगा कांस्टेंट में, तो ये एक ही टर्म्स है, क्योंकि इसको x की पावर 0 लिख सकते हो, इंटू x की पावर 0, ठीक है। तो 1 टर्म्स है, कौन सी हो जाएगी -7, ठीक है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है हमेशा 0, क्योंकि इसको आप लिखोगे x की पावर 0, तो वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप देखेंगे वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ पे 0, कोई भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे डिग्री इसकी पावर हो जाए, डिग्री हो जाएगी 0, ठीक है। जिसे पावर नहीं जनरल डिग्री बोल दीजिए आप, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल डिग्री कहलाती है, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशंस में भी देख लीजिए कितनी टर्म्स है, आप देखो ये माइनस से सेपरेट है, माइनस से, तो ये अलग टर्म्स, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, कितनी टर्म्स है 3 टर्म्स है 1 2 3, 3 टर्म्स। कौन कौन सी टर्म्स है 3, x की पावर 35 कॉमा, दूसरी वाली टर्म्स कौन सी है -6, ये माइनस साथ में आएगा 6 के साथ, तो -6। नेक्स्ट तीसरी टर्म्स कौन सी है 6y नहीं है, इसके साथ माइनस है तो लिखना पड़ेगा -6y। कितना है दोस्तों -6y। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल डिग्री जिसे बोलते हैं कितनी हो जाएगी 35, ठीक है। इस तरह से आपने सीखा कि वेरिएबल किस तरह से टर्म्स को पहचान सकते हैं। अगर समझ में नहीं एक बार रिवाइज करके जरूर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंचते हैं अपन। फिर आता है कोफिशिएंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो सिंपल। व्हाट इज द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कोफिशिएंट, व्हाट इज द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इज जनरली द मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स होता है। कैसे निकालते हैं आप देखिए, how many terms are there in the expression, तो you will say their terms are separated by plus minus sign, this is minus, this one is plus, this is plus। तो इससे टर्म सेपरेट हो जाएगी, सिंगल टर्म ये होगी, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। कितनी टर्म्स है इसमें 4 टर्म्स है। कितने, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 4 टर्म्स। इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है 4 टर्म्स है। अब ईच टर्म का कोफिशिएंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कितनी टर्म्स है 4 टर्म्स इस एक्सप्रेशन में। अब आपसे कोफिशिएंट क्या होता है, जिस टर्म्स के साथ जो वैल्यू साथ में होगी वही है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, तो एक्स का क्यूब आपको चाहिए, कोफिशिएंट किसका चाहिए एक्स का क्यूब का। तो एक्स का क्यूब वाली टर्म्स कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आप देखेंगे एक्स का क्यूब इस टर्म्स में आ रहा है, आपको जो टर्म्स है इस टर्म्स में एक्स का क्यूब आ रहा है, ठीक है। इस टर्म्स में एक्स का क्यूब है, तो एक्स का क्यूब को आप कवर कर लीजिए, आप ढक दीजिए, तो आपको जो दिखेगा वो कोफिशिएंट हो जाएगा। एक्स को क्यूब को आप हटा दीजिए इस टर्म्स में, तो आपको क्या मिलेगा 5। तो ये 5 ही एक्स का क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का 5 क्या हो जाएगा 5, ये कोफिशिएंट हो जाएगा। जो पावर एक्स का क्यूब है उसको इस टर्म्स में से हटा दीजिए, तो आपके जो बचेगा वही आपका क्या हो जाता है कोफिशिएंट। कितना हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 5। ऐसे अब आपको पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए, तो इसमें टर्म्स आप देखिए एक्स स्क्वायर की टर्म्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये टर्म्स, इसके साथ कोफिशिएंट में आप देखेंगे इस टर्म्स में ये सेकंड टर्म्स है आपकी कंप्लीट, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है -2, क्या लगा हुआ है -2। ये जो -2 होगा, ये वाला आपका -2 होगा, वही आपका क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ये -2,
इसका आंसर आ जाएगा -2। ऐसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की टर्म देखिए आप, एक्स की टर्म वाला कौन सा, ये रहा एक्स। आप कहेंगे सर एक्स के साथ तो प्लस का साइन है, कोई नंबर नहीं है, तो मैंने बताया था जैसे आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे एक्स के साथ तो क्या आएगा, एक्स आएगा, तो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1x है, एक एक्स है, 0x नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है 1। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है इसका 1, आगे साइन क्या है प्लस का 1, तो इसका कोफिशिएंट आएगा प्लस का 1 या फिर 1। अंडरस्टैंड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहाँ से आया, इस वाली टर्म से, ये वाली टर्म से। ठीक है, थर्ड वाली टर्म से कितना आ जाएगा, प्लस का 1। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट कभी कभार पूछ लिया जाता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब आपके डेफिनेशंस पे जाते हैं, ये सारे क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल हो और प्लस माइनस साइन भी हो, तो उसको क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ऑल ऑफ दीज, जो भी आप पढ़ रहे, ऑल ऑफ दीज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल एक्स इज अ होल नंबर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी पावर का एक्सपोनेंट, पावर जो होगी वो हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर। तभी दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, तभी आप उसे दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहेंगे, दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज नोन एज या फिर कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल कब होगा, जब आपकी जो पावर्स होगी एक्सपोनेंट की वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होल नंबर जरूरी है। अगर होल नंबर नहीं है तो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, होल नंबर होनी चाहिए पावर, एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए, होल नंबर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस आपको आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, पॉलिनोमियल कैन बी डिनोटेड बाय, पॉलिनोमियल को पी एक्स, चाहे जी एक्स ले लो, चाहे एस टी, स्मॉल लेटर्स होते हैं, जिससे आप डिनोट किसी से भी कर सकते हैं, जिस टाइप का वेरिएबल है। जैसे एक्स का वेरिएबल, जैसे यहाँ पे देखिए इस वाली एक्सप्रेशन में आप देखेंगे एक्स है, एक्स की पावर 2, एक्स है, एक्स की पावर 0, तो वेरिएबल क्या है, एक्स, तो यहाँ पॉलिनोमियल में अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। जी माना है तो यहाँ पे भी एक्स में एक्सप्रेशन है, तो यहाँ एक्स लिखा है। ये एक्सप्रेशन किस में, वाई है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, वाई, वाई की पावर 3, वाई, वाई की पावर 0, तो ये आप कोई भी पॉलिनोमियल क्यू माना है तो उसमें वेरिएबल क्या आएगा, ये वेरिएबल है यहाँ पे वाई में पॉलिनोमियल है। ये टी है, ये टी की पावर 2, टी की पावर 3, तो इस एक्सप्रेशन में भी आप देख रहे हैं तो ये टी की पावर में आ रहा है। तो जो भी पॉलिनोमियल मानेंगे स्मॉल लेटर एस, तो अंदर क्या रखेंगे, वेरिएबल जो शो कर रहा है वो क्या है, टी, इस क्वेश्चंस में। ठीक है, ये आपको दे रखा है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इस तरह के पॉलिनोमियल। फिर मैं आपको बताता समझा देता हूँ कि अभी तक आपने पढ़ा कि इसमें टर्म्स कितनी, इस पॉलिनोमियल में आप देखेंगे 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स। कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स। टर्म्स पहचानना आना चाहिए। इसमें कितनी टर्म्स है, प्लस माइनस से सेपरेट होती है, तो ये 1 और ये 2, कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स। इसी प्रकार से इस पॉलिनोमियल में देखिए 1 टर्म्स, 2 टर्म्स और ये 3 टर्म्स, कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स। कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स। ये आपको बार बार पता होना चाहिए, आप देखोगे प्लस माइनस साइन से सेपरेट हो जाती है। ठीक है, आपस समझा देता हूँ कैसे हुआ, ये टर्म्स प्लस माइनस से सेपरेट हो रही है, किससे, प्लस माइनस से सेपरेट हो जाती है, बताया था प्लस से, यहाँ पे प्लस माइनस सेपरेट हो रही है, माइनस माइनस प्लस से सेपरेट होगी, तो ये टर्म्स कौन कौन सी होगी, एक टर्म्स, 2 टर्म्स। इसमें कौन सी है, एक्स क्यूब प्लस 4, यहाँ पे कौन सी है, वाई क्यूब प्लस 2y माइनस 1, यहाँ पे कौन कौन सी टर्म है, 3 माइनस टी माइनस 2t स्क्वायर और प्लस 7 टी की पावर 3, ये 4 टर्म्स। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, जनरल एक्सप्रेशंस ऑफ पॉलिनोमियल किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाते हैं बहुत से स्टूडेंट। देखो आप ऐसे लिखिए, कोई कांस्टेंट है उसकी ए नॉट, ये कांस्टेंट है, A1 A2 A3 से लेके AN तक, ये सारे क्या है, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये सारे जो मैंने कलर से शो किए ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। कौन कौन से, ये जो कलर पार्ट है। ठीक है, A0 A1 A2 A3 AN तक, ये सारे क्या है, कांस्टेंट होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये एक्स आ रहा है, फिर A0 एक्स की पावर 0 लिखनी 1 होता है इसलिए लिखते नहीं है, A1 एक्स, A2 एक्स स्क्वायर, A3 एक्स क्यूब से लेके AN एक्स की पावर n तक लिखते हैं। ठीक है, सारे कांस्टेंट यूज हो गए। कभी कभी बुक्स में इस तरह से दे रखा है, उल्टा दे रखा है,
ठीक है, ए की पावर एन एक्स एन, फिर पावर्स माइनस हो रही है, लास्ट टर्म ए एन, फिर ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, इस तरह से लास्ट में ए वन ए नॉट, इसी को उल्टा लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बहुत सी बुकों में ऐसे दे रखा है, तो यही पॉलिनोमियल सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, ये और ये अलग नहीं है, एक ही। ठीक है, पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करने का ये तरीका है, जिसकी पावर ये टर्म्स होती है। आप पॉलिनोमियल में देखेंगे प्लस माइनस से भी कनेक्ट होता है, ये भी एक टर्म्स है। ठीक है, ये भी वन टर्म, ये टू टर्म, ये अलग टर्म हो जाएगी थ्री टर्म्स, ये फोर टर्म्स, इस तरह से बहुत सारी टर्म्स होती है। इसलिए मैंने स्टार्ट में बताया था पॉली मतलब मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, मैनी टर्म्स, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, फोर टर्म, तो डिफरेंट बहुत सारी टर्म्स को क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी भी बता देता हूँ, ये आप नोट कर दीजिए वापस, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी ए होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल जो भी ये पावर है, यहाँ पे देखिए एक्स की पावर वन है, यहाँ पे एक्स की पावर टू है, एक्स की पावर थ्री है, एक्स की पावर एन है, ये पावर हमेशा होल नंबर होना जरूरी है। ये कभी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर किसी किसी बुक में दे रखा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर, जो इंटीजर हो नॉन नेगेटिव मतलब -1 -2 के साइन नहीं होना, जीरो इंक्लूडिंग जीरो, दैट मीन्स होल नंबर, दोनों का मीनिंग सेम ही है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर होनी चाहिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बार बार मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपकी पावर्स होती है वो कभी भी फ्रैक्शन और नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, हमेशा क्या होगी, होल नंबर होनी चाहिए। इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बात करते हैं ये पॉलिनोमियल से। आपको दे रखा है ये पॉलिनोमियल दे रखा है 7x² माइनस, कितनी टर्म्स है इसमें, वन टर्म्स, टू टर्म्स, थ्री टर्म्स, तो ये थ्री टर्म्स है इसमें। वेरिएबल क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, हाईएस्ट पावर कितनी है, टू, तो डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, तो इसकी डिग्री क्या है, टू, डिग्री क्या है बेटा, टू। और टर्म्स कितनी है, वन टर्म्स, टू टर्म्स, थ्री टर्म्स, टर्म्स कितनी है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगा, थ्री। ठीक है, कितनी टर्म्स है, थ्री, आपको पहचान है। अब पूछो x² का कोफिशिएंट क्या है, तो 7, x का कोफिशिएंट क्या है, -7। ठीक है, x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, तो 7। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस 7 पॉलिनोमियल, क्या ये 7 नंबर्स होता है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, इस 7 पॉलिनोमियल, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस 7 इज ए पॉलिनोमियल और नॉट, क्या ये 7 है वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, तो यस होगा, ऑफ कोर्स। 3 -7 9 7 सारे क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इन्हें क्या कहा कहते हैं, आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इनको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बट जीरो को स्पेशल नाम एक और दे रखा है, जीरो को एक स्पेशल नाम क्या कहता है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो इज कॉल्ड एज जीरो पॉलिनोमियल, क्यों कहते हैं, इसको चैप्टर में पढ़ेंगे आप। ठीक है, जीरो को एक स्पेशल और नाम है जीरो पॉलिनोमियल। क्या जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही है, जीरो को कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, पर इसका एक एक्स्ट्रा नाम है जीरो पॉलिनोमियल, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है उनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं, जिनको 1 बाय 1 एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, अब बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। दो टाइप से आप क्लासीफाइड कर रखते हैं पॉलिनोमियल को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे आपकी जब डिग्री, ठीक है, डिग्री अगर जीरो हो, ये पॉलिनोमियल का टाइप है, डिग्री जीरो हो तो उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, डिग्री जीरो हो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर जीरो पॉलिनोमियल। डिग्री वन हो तो उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जब भी पॉलिनोमियल की डिग्री वन होगी, डिग्री क्या है, वन, तो उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री जीरो हो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री टू होगी तो उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे आप नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए, बार बार यूज होने वाले। अगर आपकी डिग्री थ्री हो जाए, डिग्री थ्री होगी तो उसको कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यू मस्ट बी नोट डाउन इट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये अभी तक आपने जो पढ़ा वो किसके बेस पे, डिग्री के। अब बेस पे करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल के टाइप्स कौन कौन से वो भी देख लीजिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आपके किसी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स वन है, एक ही टर्म्स है, तो उसे क्या कहेंगे आप, मोनोमियल। क्या कहेंगे दोस्तों, मोनोमियल। क्या कहेंगे, मोनोमियल।
ठीक है। अगर टर्म्स 2 हो तो उसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल। क्या कहेंगे, उसे बाइनोमियल कहेंगे। और टर्म्स की संख्या 3 हो तो उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्राइनोमियल। टर्म्स के आधार पे आप उसे एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। ये आपने अगर नोट नहीं किया तो आप इसको नोट कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपके काम आए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब इसको पढ़ेंगे डिटेल्स में। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, वापस सिंपली स्पीडली लूँगा अभी। नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे अभी आपने बताया कि एक मोनोमियल्स कितने बोलते हैं, जिसमें एक टर्म्स हो। कितनी टर्म्स हो, 1। इसके एग्जांपल देख लीजिए। एक ही टर्म्स वाले सारे कांस्टेंट ले लीजिए, कोई भी -3, तो इसमें भी डिग्री के एक ही टर्म्स है। या फिर वेरिएबल ले लीजिए x, तो भी एक टर्म्स है। y की पावर 25, तो भी एक ही टर्म्स है, ठीक है। आप कोई भी टर्म्स ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। टर्म्स कितनी भी हो सकते हैं, x स्क्वायर वाई, तो ये भी सिंगल टर्म है, क्योंकि प्लस माइनस बीच में कोई साइन नहीं है। मल्टीप्लाई हो सकता है, बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये भी कितना टर्म्स है दोस्तों, ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई का साइन बीच में है तो ये भी कितना है, सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है। इसको भी कितना करना है, कंसीडर 1 टर्म। और एग्जाम्पल देख देखिए, x y z, तो ये भी कितना है, 1 टर्म। ये सारे क्या कहलाएंगे, सिंगल टर्म्स होगा। 1 टर्म है सब में, 1 सिंगल टर्म, 1 टर्म, 1 टर्म, 1 टर्म, 1 टर्म, सिंगल टर्म है सब। उससे क्या कहते हैं, उस मोनो एक टर्म वाले को क्या कहेंगे, टर्म से बेसिस पे मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमियल। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, बाइनोमियल टाइप 2। टाइप में बाइनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें 2 टर्म्स हो। अब टर्म्स होंगे 2 टर्म्स के लिए आपको प्लस माइनस बीच में साइन होना जरूरी है, क्योंकि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन। तो आप कोई भी टर्म्स ले लीजिए, जैसे मैंने लिखा x एक टर्म है, एक y टर्म है, बीच में शायद प्लस लगाना है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस चाहे तो माइनस, मैंने माइनस लगाया, तो ये टर्म्स 1 होगी, ये टर्म्स 2 होगी। तो 2 टर्म्स है तो इसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल। आप कहेंगे सर x की पावर 33 और y, क्या ये 2 टर्म्स हो गया, नहीं हुआ, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, तो आप एक और टर्म्स ले लिए -z। तो ये टर्म्स पूरी एक सिंगल टर्म काउंट होगा, ये 1 टर्म और ये भी 1 टर्म, दोनों मिलके क्या हो गया, 2 टर्म्स। 2 टर्म्स होते ही क्या कहेंगे, उसे बाइनोमियल। इस तरह से आप कितनी भी डिग्री पावर लगा सकते हैं, y की पावर 3 माइनस प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर z। तो ये पूरी एक टर्म सिंगल टर्म है, ये प्लस से आएगा, सेपरेट हो गया, ये दूसरी टर्म हो जाएगी प्लस टर्म। फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी, सेकंड टर्म ये हो जाएगी, ये अलग टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी और ये वाली सेकंड टर्म हो जाएगी, ठीक है। बाई क्यूब है, वापस लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 टर्म्स हो गई, 1 टर्म ये हो गई और सेकंड टर्म ये पूरी हो गई। तो कितनी टर्म्स है इसमें, 2 टर्म्स। किससे सेपरेट हुआ है, प्लस साइन से, ठीक है। तो टर्म प्लस माइनस से आपका टर्म सेपरेट हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, बाइनोमियल। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि ट्राइनोमियल्स का एग्जांपल देख लीजिए। ट्राइनोमियल्स का मतलब होता है 3 टर्म्स होनी चाहिए। कितनी टर्म्स, 3 टर्म्स। तो प्लस माइनस साइन बीच में लगा ली, देखो x y z, तो इसको सेपरेट करना है तो माइनस लगा दिया, यहाँ पे सेम माइनस, तो कितनी टर्म्स होगी, 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल है। y प्लस z माइनस टी स्क्वायर, कितनी टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स, क्योंकि ये प्लस माइनस से सेपरेट हो जाते हैं। कितनी टर्म्स हो जाएगी, प्लस माइनस से सेपरेट हो जाएगी। कितनी टर्म्स है, 1 2 3, तो ये कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स। इस तरह से आपसे कोई एग्जाम में पूछ सकता है कि 3 टर्म्स का जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 32 बनाओ, तो 32 लिख लो, ठीक है। इसका कोई भी टर्म्स ले लो, -y प्लस 3, तो भी इसमें भी कितनी टर्म्स हो जाएगी आपकी, 3 टर्म्स हो जाएगी, ठीक है। ये भी ट्राइनोमियल है। इस एक्सप्रेशन में भी आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3, 1 2 3, माइनस से सेपरेट हो जाएगी, प्लस से सेपरेट हो जाएगी, तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म्स। इस तरह से आप एक्सप्रेशन बना सकते हैं, जिसकी पावर 32 हो, तो ऐसा एक्सप्रेशन भी पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान रखना, ठीक है। ट्राइनोमियल, ठीक है। इस तरह से आपने सीखा ट्राइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो आपको डिग्री पहचानना है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है। क्या होती है डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो आपने भी पढ़ा था स्टार्ट में। अब डिग्री चेक करते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, इसमें x है, वेरिएबल क्या है x, x की पावर कितनी है 3, x की पावर 2, x की पावर इसमें 1, x की पावर इसमें कितनी है 0, कांस्टेंट में 0। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, 3 है। कितनी है, x की पावर 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 3, क्या हो जाएगी, डिग्री 3। इस एक्सप्रेशन में देखते हैं x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर कितनी है 4, यहाँ x की पावर कितना है 1, कितना है 1,
तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया 4, तो डिग्री क्या हो जाएगा 4, डिग्री क्या हो जाएगा 4। इस टर्म्स में आप कहेंगे एक्स की पावर तो है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है। तो इस तरह के टर्म्स जब भी आपको दिखते हैं एग्जाम्स में तो डिग्री 0 माननी है। ये आपने नोट करके लिख लीजिए ताकि आपकी दिक्कत नहीं हो। ये नोट का डाल के आप पॉइंट बना सकते हैं। जी एक्स में 2 है तो यहाँ लिखा है इन द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यू एक्स इक्वल टू 2 कांस्टेंट है। द टर्म 2 विद द हाईएस्ट पावर कैन बी रिटर्न एट 2 इंटू एक्स की पावर क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पावर क्या है, हाईएस्ट पावर एक्स, वेरिएबल की क्या है 0, क्या है 0। दैट्स वाई सो इट्स डिग्री इज 0, डिग्री क्या रहेगी हमेशा 0। ये आपको नोट करके रखना है अच्छे से, ठीक है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो इस वाले टर्म्स में आपकी डिग्री क्या हो जाएगी, आंसर आ जाएगा इसकी डिग्री क्या है 2 की कांस्टेंट की, तो क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगी डिग्री 0। ये आपको ध्यान रखना है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन का, या मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ, ये मैंने वापस नोट बना के भी लिखा है, आप नोट करके भी लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो, जीरो के अलावा, क्योंकि जीरो को तो हम आप क्या बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कोई भी कांस्टेंट हो तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, उसकी डिग्री हमेशा, डिग्री क्या रहेगी आपकी हमेशा 0 रहेगी, क्या रहेगी 0। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई राइट नोट, ठीक है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अब बात करते हैं। डिग्री अगर पॉलिनोमियल की 1, व्हाट इज द डिग्री, अगर डिग्री पॉलिनोमियल की 1 हो जाए, डिग्री 1 हो तो उस टाइप के पॉलिनोमियल नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए 1, डिग्री 1 है तभी उसको क्या कहेंगे लीनियर। लीनियर मीन्स डिग्री क्या होनी चाहिए 1, उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, पॉलिनोमियल इन एक्स, उसकी डिग्री क्या है एक्स, एक्स की पावर हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1, और डिग्री 1 होगी तो इस टाइप के, डिग्री 1 है तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें भी देख लिए टी की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे टी की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, कितनी है 1, तो इसकी भी डिग्री क्या है 1, डिग्री 1 है तो इसे भी क्या कहेंगे आप, डिग्री जब भी 1 हो, डिग्री जब भी आपकी क्या हो 1, तो उसको क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपका यूज करेंगे आप, लीनियर पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उसे आप एक्सप्रेस करते हैं, हमेशा याद रखना ये एक्सप्रेस करने का तरीका है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सी इक्वेशंस में यूज होगा। पॉलिनोमियल एक्स कैन बी रिटन एट ए एक्स प्लस बी, ए के साथ एक्स है, एक्स की हाई वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका लीडिंग कोएफिशिएंट, जैसे एक्स के साथ क्या है ए कभी भी 0 नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसे ये ए एक्स प्लस बी है आपका, अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये टर्म्स पूरी 0 हो गई, ए इंटू 0 0 प्लस बी, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आपका ए 0 नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 0 नहीं रख सकती। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है 1, ये टर्म्स है, सेकेंड टर्म्स प्लस बी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मैक्सिमम 2 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स, कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स। अभी मैंने कहा कि ए 0 नहीं हो सकता, बी 0 हो सकता है। अगर बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ए एक्स बनेगा जिसमें सिंगल टर्म होगी, तो उसे क्या कहेंगे मोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे मोनोमियल। अगर ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, तब इस केस में 2 टर्म्स हो जाएगी, 1 टर्म्स ये, सेकेंड टर्म ये। तो इस टाइप के लीनियर पॉलिनोमियल को क्या कह, एक और नाम कह सकते हैं बाइनोमियल भी कह सकते हैं। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स हो सकती है, तो मैक्सिमम 2 टर्म्स होती है लीनियर पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से और पढ़ लेते हैं नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री 1 के बाद देखते हैं डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। तो देख लीजिए आप डिग्री क्यू एक्स की हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, देखो 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यहाँ पे एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0, तो डिग्री क्या है इसमें 2 है, डिग्री क्या है 2, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे क्या ABCD का लेटर एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2। डिग्री जब भी 2 होगी तो उससे कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें भी देख लो डिग्री क्या है 2 की एक्स की पावर 2, इसमें भी डिग्री क्या है 2, इस वाले टर्म्स में भी डिग्री क्या है 2, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरली कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो देख लीजिए ये आपके काम आएगा। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जो ए एक्स स्क्वायर के साथ ए है तो ए कैन नॉट बी 0,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर बार लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं वो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ए 0 नहीं हो सकता, तो ए 0 नहीं हो सकता। कितनी टर्म्स है इसमें? 1 2 3 टर्म, 3 टर्म्स है, तो मैक्सिमम कितनी टर्म्स है इसमें? 3 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है मैक्सिमम? 3 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स। कौन सी? एक्स स्क्वायर, बी एक्स और सी। ठीक है, 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स होंगी तो उसे क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। अब मैंने बोला ए 0 नहीं हो सकता, बी तो सी 0 हो जाएगा, तो कितनी टर्म बचेगी? 1 और 2, तो उसे बोल देंगे बाइनोमियल। अगर सी भी 0 हो जाए, बी भी 0 हो जाए, ये टर्म 0 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब एक टर्म बचेगी, तो इसलिए उसको क्या बोल सकते हैं? मोनोमियल। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है और ट्राइनोमियल भी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपली अभी बताया, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री थी, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी? 3। डिग्री क्या है? 3। डिग्री 3 हो तो उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टार्ट में मैंने नोट डाल के बता भी रखा था कि इसे नोट कर दीजिए, वही लिख रहे। इस पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? एक्स की पावर 3 है, इसमें एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, ठीक है, और इसकी एक्स की पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर कितना है? 3। एक्स क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी? 3। डिग्री क्या है यहाँ पे? 3। डिग्री 3 हो तो डिग्री जब भी 3 होगे तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को डिग्री जब 3 हो, पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्यूबिक पॉलिनोमियल को जनरली एक्सप्रेस किससे करते हैं, ये भी आप नोट डाउन करिए। एक एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 4 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम 4 टर्म्स। ठीक है, ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपके फिल इन द ब्लैंक में भी पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? तो आपको लिखना पड़ेगा नॉट डिफाइंड। क्या लिखना पड़ेगा? नॉट डिफाइंड। डिफाइन ही नहीं, क्योंकि जीरो डिग्री जैसे वेरिएबल आप लिखोगे, 0 की पावर 0 आप लिख ही नहीं सकते। तो वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये तो वेरिएबल बचा ही नहीं, इसका मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप सिंपली लिखना है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है। जीरो पॉलिनोमियल है, 0 पे डिग्री 0 नहीं लगा सकते, तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नोट डाउन इट, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि लेक्चर अब ऐड करने वाले। ठीक है, अब क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में किस तरह से एक्सरसाइज है उसके 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस पे दिक्कत नहीं हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इन विच ऑफ द एक्सप्रेशंस, आपको जो एक्सप्रेशन नीचे दे रखे हैं वे एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, उनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल है या नहीं है इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्योंकि एक्स ही यूज कर रहे, और नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको बतानी है, कितनी टर्म्स है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो पॉलिनोमियल है या नहीं चेक करने के लिए आपको बताया था डिग्री क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने? डिग्री क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, एक्स की पावर 1/x को लिख सकते हैं एक्स की पावर -1, जैसे आप जानते हैं। तो यहाँ एक्सपोनेंट आप देखेंगे, यहाँ पे 2 टर्म्स है, 1 और 2 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? 2। तो द एक्सपोनेंट ऑफ, ये नोट लिखा हुआ है, द एक्सपोनेंट ऑफ 1/x की पावर क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंट क्या है? -1। क्या -1 होल नंबर है? तो आपने लिखा विच इज नॉट ए होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है, नॉट ए होल नंबर। होल नंबर नहीं है, होल नंबर डिग्री नहीं है, तो इसका इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। कैसे आया तो वापस बता देता हूँ। देखो 1/x वाली टर्म्स देख रही 1/x की टर्म्स को आप लिखेंगे x की पावर -1, और इसकी डिग्री देखेंगे तो ये आ जाएगी। ये डिग्री क्या है? -1। कितना है? -1। कितना है? -1। तो ये लिखा है एक्सपोनेंट ऑफ 1/x, या फिर डिग्री ऑफ 1/x इज, डिग्री नहीं पावर, सॉरी, पावर ऑफ 1/x इज -1, इज नॉट ए होल नंबर। तो पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, तभी आपका पॉलिनोमियल होगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक और नेक्स्ट एक्सप्रेशन देख रहे, इस एक्सप्रेशन में आपने देखा 2√x + √3x + 3, तो यहाँ पे नंबर 3 है, या x की पावर क्या है? 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, x नहीं है तो चलेगा। यहाँ पे इस टर्म्स में प्रॉब्लम है, √x है, √x अभी मैंने बताया था, √x को आप क्या, पावर ऑफ √x क्या हो जाएगी?
रूट एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ, और इसकी पावर क्या हो जाएगी ये वाली। रूट एक्स को बताया था स्टार्ट में, एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, और 1/2 इसकी क्या हो जाएगी पावर। पावर क्या है 1/2, पावर क्या हो जाएगी इस रूट एक्स की 1/2, पावर 1/2। ये तो फ्रैक्शन हो गया, होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन हो गया विच इज नॉट ए होल नंबर। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 ये इस तरह के नंबर होते हैं होल नंबर। ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3, तो सिंपल है। नेक्स्ट वाई का क्यूब एक्सप्रेशन, क्या ये पॉलिनोमियल है। इस टर्म में भी आप देखेंगे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वाई की पावर 3 होल नंबर, वाई की पावर 7 होल नंबर, वाई की पावर 6 होल नंबर, कितनी टर्म्स है 1 2 3 4। इस टर्म्स में प्रॉब्लम है क्योंकि पावर ऑफ रूट वाई की पावर 3, इसकी रूट ऑफ वाई 3 मतलब वाई की पावर 1/3 होगा, और y/3 मतलब ये पावर क्या होगी आपकी, इसकी पावर क्या है 1/3। ये तो आपका फ्रैक्शन हो गया, पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकती, ये भी बताया था। विच इज़ नॉट ए होल नंबर, ये भी होल नंबर नहीं है, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 7x³ - 6x + 3, इसमें भी आप देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3। तो पावर ऑफ वेरिएबल देखो, x की पावर क्या है, x की पावर 3 है, x की पावर 1 0, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है होल नंबर, सबकी क्या है होल नंबर, इसकी पावर 1 है तो होल नंबर है। इसका मतलब पावर ऑफ ईच टर्म ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ ईच टर्म इज ए होल नंबर, सबकी क्या है होल नंबर है। इसका मतलब ये क्या है इट इज ए पॉलिनोमियल, ये आपका क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल। सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन आपका क्या है पॉलिनोमियल, दिस इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज पॉलिनोमियल, यस दिस इज द पॉलिनोमियल। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट डाउन करके लिखिए, पॉलिनोमियल्स हैविंग मोर देन वन वेरिएबल। कभी कभार पॉलिनोमियल्स में ज़रूरी नहीं है एक ही वेरिएबल हो, सब में आपने एक्स यूज़ किया तो मोर देन वन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एक वेरिएबल से भी ज़्यादा हो सकते हैं। देखते हैं, इसमें एक्स वेरिएबल है, सेपरेट टर्म है 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म्स, वेरिएबल क्या है वाई, इसमें वेरिएबल क्या है जेड। तो कितने वेरिएबल्स यूज किए गए, एबीसीडी के लेटर इस तीनों में देख लिए, इसमें एक्स है, पावर से मतलब नहीं है, कितने वेरिएबल लेटर्स कौन कौन से एबीसीडी के लेटर यूज किया आपने, एक्स भी कर रखा है वाई भी कर रखा है, और इस पर एक्स आ गया वाई आ गया जेड। तो वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना हो जाएगा 3, और कौन कौन से एक्स वेरिएबल है वाई वेरिएबल और जेड वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स। टर्म्स नहीं पूछ रहा हूँ, ध्यान रखना वेरिएबल्स पूछ रहा हूँ, मैंने सिर्फ वेरिएबल्स बताया, वेरिएबल्स कौन से, ठीक है, टर्म्स नहीं पूछ रहे। इस एक्सप्रेशन एबीसीडी के लेटर कौन से है, वो सारे वेरिएबल्स होते हैं। पी आ चुका है, क्यू आ चुका है, आर आ चुका है, एस, पी हो गया कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस, कितने वेरिएबल हो गए 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाएगा 4 वेरिएबल्स। इसी प्रकार से नेक्स्ट टर्म में कितनी टर्म्स है 1 2, वेरिएबल कौन सा है टी है और एस है, तो कितने नंबर ऑफ कौन कौन से वेरिएबल है टी और एस, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना हो गया 1 और 1 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में भी हैव मोर देन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लास्ट सेकंड लास्ट एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे निकालते हैं। सिंपल तरीका है इसका, आपको जो वैल्यू दे रखी है एक्स की वैल्यू, जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेस में एक्स को रिप्लेस करना है उस जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उससे, तो आपका वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली टर्म्स में लिखा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, एक पॉलिनोमियल पी एक्स कैन बी ऑब्टेन, कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय रिप्लेसिंग बाय एल्फा, एल्फा कुछ नहीं, बाय रिप्लेसिंग बाय ए नंबर एल्फा, एल्फा क्या है एक नंबर है इन पॉलिनोमियल एक्स। फॉर एग्जांपल्स आपको ये क्वेश्चंस दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स, इसमें एक्स जहाँ दिख रहा है एक्स वेरिएबल की जगह आपको वैल्यू रखनी है, एक बार वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहाँ पे निकालने है, एक्स इक्वल्स टू -1 निकाल लेते हैं। पॉलिनोमियल पहले लिख लीजिए, पॉलिनोमियल एक्स क्या दे रखा है 8x² - 3x + 1। अब आपको सिंपली क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह क्या रखना है -1, क्या रखना है -1, ताकि आप पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल। पॉलिनोमियल एक्स की जगह क्या रख दीजिए -1। अब एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह -1, तो ये एक्स है तो एक्स की जगह -1 की पावर 2 -3 एक्स था उसकी जगह क्या आ जाएगा -1 + 1। समझ में आ गया, आपको एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो एक्स की जगह वैल्यू रख दी -1 यहाँ पे भी एक्स की जगह -1, ताकि वैल्यू एट एक्स -1 निकाल सके।
अब सॉल्व कर दीजिए। 8 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, तो 8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 +1, ऐड सबको कर लिए 8 + 3 + 1 = 12। दिस इज योर आंसर। ऐसे ही पॉलिनोमियल ऑफ वैल्यू निकालनी है आपको एट x = 0। कहाँ पे निकालनी है? x = 0, तो x की जगह क्या रख दीजिए? 0 रख दीजिए सिंपली। तो पॉलिनोमियल x की जगह 0, एक्सप्रेशन यही है 8x² ये है -3x + 1, x की जगह यहाँ स्क्वायर है, x की जगह क्या रखना है? 0। क्या रखना है आप क्योंकि बाद क्या रखना है? 0, तो 0 रख दीजिए। जैसे आप 0 पुट कर लीजिए 0 0, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 × 0 का स्क्वायर 0, 0 × 8 0, -3 × 0 0 +1, ये तो कुछ वैल्यू 0 - 0 ही रहेगा, +1 क्या आ जाएगा आपका आंसर? 1। ठीक है, इस तरह से आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्या निकाल रहे हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या निकाल रहे हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। एक और देख लिए, x = 2 पे पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दी, तो x की जगह क्या रख देंगे? इस एक्सप्रेशन में 2 रख दीजिए। ठीक है, रख के निकाल के दिखा देता हूँ, ये भी सिंपल ही है। ठीक है, चलो रख देते हैं। पॉलिनोमियल में x की जगह -2 रखना है। ठीक है, 8 -x का स्क्वायर -3 यहाँ पे x +1, x की जगह क्या रखना है? -2। क्या रखना है? -2, तो -2 आ जाएगा इस एक्सप्रेशन में। x की जगह -2, इसकी जगह -2 रख दिया एक्सप्रेशन में। आई होप यू अंडरस्टैंड। x की जगह वैल्यू रख दी -2 इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल x। ठीक है, तो आप क्या अब सॉल्व कर दीजिए। 8 × -2 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस, 3 × 2 6 +1, सिंपल। 8 4 जा 32 +6 +1 39। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या निकालना है आपको? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? जीरो को कभी कभी किसी बुक में रूट भी दे रखा है। क्या बोलते हैं इसको? रूट भी बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? रूट। ये भी ध्यान रखना है, जीरो को ही रूट बोला जाता है। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है क्या? इट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होती है? वैल्यू ऑफ, इट इज़ द वैल्यू, इट इज़ द वैल्यू एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। ऐसी वैल्यू जहाँ पे पॉलिनोमियल जो भी आपको दे रखा है उसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। सिंपली कैसे? जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, वेरीफाई करना है x + 1 हैज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एट x = -1, तो आप इसमें x की जगह क्या रखेंगे? -1। अगर वैल्यू जीरो आ जाए तो हम कहेंगे -1 इसका क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। रख के देख लीजिए, p ऑफ -1 रखा आपने, -1 + 1 क्या आ गया? जीरो आ रहा है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। इसका मतलब जब भी जीरो आएगा तो जो वैल्यू यहाँ रख रहे हो x की वैल्यू, वो क्या हो जाएगा? जीरोज। देयरफॉर x = -1, यस x = -1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसी क्या वैल्यू जिसको रखने पर आपकी वैल्यू जीरो बन जाए तो उसे बोला जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसके लिए मैं सिंपल तरीका आपको एक और बता देता हूँ। जब भी आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो सिंपल बेस्ट तरीका यही है। 10 जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल p ऑफ x + 1 इज ऑब्टेन्ड बाई इक्वेटिंग इट टू जीरो। जब भी आपको इसका जीरो निकालना है एक्सप्रेशन का, सिंपली इसको इक्वल टू जीरो कर दो, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। वापस समझा देता हूँ, जैसे जीरो जो इस पॉलिनोमियल का आपको जीरो निकालना है तो इस एक्सप्रेशन में इक्वल टू जीरो लगा दो, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सेम ही है। तो x + 1 किसके बराबर कर दो? जीरो के। तो x + 1 = 0, तो इसको सॉल्व कर दो इक्वेशन को, x = -1 आ गया, तो -1 आपका आंसर हो जाएगा। तो -1 इज द जीरो, या जीरो को रूट भी बोलते हैं, बताया था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो सिंपल तरीका है, जीरो जब भी निकालना है तो पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू जीरो रख दो। क्या रखना है? इक्वल टू जीरो, और x की वैल्यू निकालोगे वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप दिस इज सो सिंपल वे। क्वेश्चंस कर लेते। एक क्वेश्चन से आपका सिंपल सा है, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
तो आपको बताया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के जो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल दे रखा है इसको इक्वल टू जीरो कर दो, दिस इक्वल्स टू जीरो करते आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये पॉलिनोमियल एक्स था, इसको इक्वल टू जीरो रख दिया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। 3x + 1 इक्वल्स टू जीरो, सॉल्व कर दीजिए, सिंपल है। 3x इक्वल्स टू -1, फर्दर आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू -1/3 द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये लिखा हुआ है, फाइंडिंग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज सेम एज सॉल्विंग द इक्वेशंस पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू जीरो। तो आपने पॉलिनोमियल x था उसको इक्वल टू जीरो कर दिया, आंसर आ गया x इक्वल्स टू -1/2। दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जो एक्सप्रेशन दे रखा है जिसका जीरो जो आप निकाल रखे हैं उसको इक्वल टू क्या रखना है, जीरो। तो ये एक्सप्रेशन है, इसको इक्वल टू जीरो कर दो, इससे x की जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या आ जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। दिस इज सो सिंपल, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। लास्ट एक क्वेश्चन और देख लिए, आपको इसका जीरो जो पॉलिनोमियल निकालना है, तो जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है इसको इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो। देयरफॉर x² - 1 इक्वल टू जीरो, सॉल्व कर दो। x² इक्वल्स टू 1, तो रूट ले लेंगे दोनों तरफ, x इज इक्वल टू प्लस रूट ले लेंगे 1 + -1, तो x इक्वल्स टू +-1। इसका मतलब 2 जीरोज हो गए, कितने जीरो हो गए, x की वैल्यू +1 भी है और -1 भी है। देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जो एक्सप्रेशन उनको इक्वल टू जीरो करना है। जो भी आपको जैसे इस पॉलिनोमियल का एक्ट को जीरो निकालना है तो इसको इक्वल टू क्या कर दो, जीरो कर दो, इक्वेशन सॉल्व कर दो, एक्स की जो वैल्यू जाएगी वही आपके क्या हो जाएंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो इसके जीरोज -1 और +1, दो जीरोज, एक ये है -1 और दूसरा 1, तो 2 जीरोज हो गए, जीरोज आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। लास्ट एक क्वेश्चन फाइनली कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। आपको पॉलिनोमियल के क्वेश्चन से ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। पॉलिनोमियल px दे रखा है x² - 4x + 3, इवेल्यूएट, आपको वैल्यू निकालनी है p2, इसकी वैल्यू -p ऑफ -1 + p ऑफ हाफ। तो सबसे पहले आपको सेपरेट p ऑफ -2 निकालना पड़ेगा, तो पहले p ऑफ -2 निकाल लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल x आपको दे रखा है x² - 4x + 3, जो पॉलिनोमियल था वो मैंने एक्सप्रेस कर दिया, ये वाला पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, इसको लिख दिया आपने। अब p ऑफ 2 अभी बताया, p ऑफ 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जहाँ x है उसकी जगह कितना रखना है, 2, तो x की जगह 2 रख दीजिए इस एक्सप्रेशन में। तो 2 का स्क्वायर -4, x की जगह 2 + 3, सॉल्व कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, -4 2 जा 8 + 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये किसकी वैल्यू निकाल दी आपने, पॉलिनोमियल p ऑफ 2 की वैल्यू, p ऑफ 2 की वैल्यू आ गई -1, कितनी आ गई, -1। अब निकालेंगे नेक्स्ट p ऑफ -1 की वैल्यू। p ऑफ -1 की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह क्या रखना है, -1। इसे x में x की जगह -1 रख दीजिए, x की जगह -1, इसमें x की जगह जहाँ जहाँ है x की जगह -1 रख दीजिए। तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर -4 -1 + 3, सॉल्व कर दीजिए। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, -1 माइनस क्या हो जाएगा, +4 × 1 4 +4 +3, ऐड कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 8। तो पॉलिनोमियल p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब नेक्स्ट आपको निकालना है इसकी वैल्यू, p ऑफ हाफ की वैल्यू निकालना है। तो x की जगह आप क्या रखेंगे, हाफ रख दीजिए, इस एक्सप्रेशन x की जगह हाफ, तो सिंपल है, x की जगह रख देंगे हाफ। तो ये x का स्क्वायर है तो हाफ का स्क्वायर -4 × हाफ +3, थोड़ा सॉल्व करते हैं, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स तो -2 + 3, इसको सॉल्व करेंगे 1/4 +1, तो इसको सॉल्व एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 5/4। ठीक है, इस तरह से आपने p ऑफ -हाफ की वैल्यू भी कितनी आ गई, 5/4। फाइनल आपको तीनों वैल्यू को क्या करना था, ऐड करना था, क्या करना था,
ऐड करना है तीनों वैल्यू को, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, तीनों वैल्यू का क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे प्लस। तो इनकी वैल्यू निकालनी है, रख दीजिए तीनों की वैल्यू, पी ऑफ 2, पी ऑफ -1, पी ऑफ हाफ। देयरफॉर पी ऑफ 2 रख देते हैं, पी ऑफ 2 माइनस पी ऑफ -1 प्लस पी ऑफ हाफ, सबकी वैल्यू रख दीजिए आप। पी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, पी ऑफ 2 की वैल्यू ये दे रखी है, पी ऑफ 2 की वैल्यू है कितनी आ गई, -1, तो -1 आ जाएगा, माइनस साइन माइनस, पी ऑफ -1 किसकी वैल्यू रख रहे हैं आप, पी ऑफ -1, पी ऑफ -1 की वैल्यू देख लीजिए, पी ऑफ -1 की वैल्यू है +8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, प्लस पी ऑफ हाफ, पी ऑफ हाफ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी है 5/4। इस तरह से आप सॉल्व कर दीजिए, यह आ जाएगा -9 प्लस 5/4, एलसीएम ले लीजिए 4, यह आ जाएगा -36 प्लस 5। जैसे सॉल्व कर देंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी -31/4। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। थैंक यू, यहीं पे आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग एंड गेट रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियोज। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट। Subscribe my channel if you like Maths by Jeevan Rathod for next update. Thank you. Thank you. Bye bye. Take care. ठीक है. Have a great day. Bye bye. Thank you. Bye.